امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا مختلف مقامات پر آپریشن، 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاک فوج کا جوان بھی شہید ہو گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اسٹریٹ کور کا دورہ کیا۔ العزیزیہ اور ایمن فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ اپیلوں کی سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہوا جائے گا۔ نواز شریف کی ایمن فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر پیشی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کی سائبر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس امن رفت پر مشتمل 2 رکنی ڈویژن بینچ نے چیئرمین PTI کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی ہے۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر کاور منیکا نے کہا ہے کہ چیئرمین PTI نے پیری مریدی کی آڑ میں ہمارا گھر برباد کر ڈالا۔ کاور منیکا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بشرا بی بی کی بہن نے چیئرمین PTI کو متعارف کرایا۔ اپنی بیوی کی چیئرمین PTI سے ملاقاتوں پر مجھے اعتراض تھا۔ چیئرمین PTI کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھتا گیا۔ چیئرمین PTI کے آنے جانے سے ہمارے گھر والے ڈسٹرب ہوتے تھے۔ کاور منیکا نے کہا ہے کہ میری والدہ نے چیئرمین PTI کے گھر آنے پر اعتراض بھی اٹھایا تھا۔ میری اجازت کے بغیر آ کر چیئرمین PTI گھنٹوں میرے گھر بیٹھے رہتے تھے۔ غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ اسرائیلی مغویوں اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ مرحلہ وار کیا جائے گا۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق ایک دن میں 10 اسرائیلی مغوی اور 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ 300 ٹرک خوراک، طبی آلات اور ایندھن میں غزہ میں لائے جائیں گے۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ نے جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچنے کا عندیہ دے دیا۔ ایک بیان میں اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہم جنگ بندی کے ایک معاہدے تک پہنچنے کے بہت قریب ہیں۔ حماس نے اپنا موقف قطر کے بھائیوں اور ثالثوں کو پہنچا دیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جنگ بندی کی ابتدائی 5 روزہ عارضی معاہدے میں زمینی سیز فائر اور جنوبی غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں کو بھی کم محدود کیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق مجوزہ معاہدے کے تحت 300 فلسطینیوں کو اسرائیل جیلوں سے رہا کیا جائے گا، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری مکمل۔ بجلی صارفین پر 40 ارب روپے کا ایک اور اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی۔ بجلی 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کر دی ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی ڈالر سستا، روپے کی قدر میں مزید بہتری آ گئی۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان برقرار۔ آج کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 47 پیسے سستا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 285 روپے 50 پیسے ہو چکی۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر ڈالر 285 روپے 97 پیسے پر بند ہوا تھا۔
पीसीबी की जानिब से साबिक क्रिकेटर उमर गुल और सईद अजमल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पीसीबी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बॉलिंग कोचेस का ऐलान किया गया है। और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम शेख अब्दा अली इदरीस इंतकाल कर गए। सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक शेख अब्दा अली इदरीस हिजरा मुबारका की देखभाल पर मामूर थे। शेख अब्दा अली इदरीस मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोलने, बंद करने, रोशन और मुअत्तर करने की भी जिम्मेदारी उठाए हुए थे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम का नमाज जनाजा आज मस्जिद नबी में बाद नमाज मगरिब अदा किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर और मैं हूं हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज आज ही सुनाया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि 5:30 बजे मुख्तसर फैसला सुना देंगे। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज आज ही सुनाया भी जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 5:30 बजे मुख्तसर फैसला सुना देंगे। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर सैयद उमर अवैस गुरदेजी से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला जो था वो महफूज कर लिया गया था, जो आज 5 बजे सुनाए जाने का इम्कान है। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस मौके पर रिमार्क देते हुए कहा कि 5:30 बजे मुख्तसर फैसला सुना देंगे। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज कर लिया था और रिमार्क दिए थे कि अपील पर फैसला आज ही सुनाया जाएगा। साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच में समाअत की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत बेंच में शामिल है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज किया और मौक़िफ़ पेश किया कि जेल ट्रायल के लिए तरीकाकार मौजूद है। जेल ट्रायल के लिए पहला कदम जज का माइंड है कि वो फैसला करे। जज को जेल ट्रायल की वजूहात पर मबनी वाज़ेह ऑर्डर पास करना चाहिए। जज को जेल ट्रायल से मुताल्लिक़ जुडिशल ऑर्डर पास करना होगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कोई मिसाल है कि सेक्शन 352 का इख्तियार कैसे इस्तेमाल हुआ। वकील सलमान अकरम ने अदालत के सामने सिंध हाई कोर्ट का फैसला पेश कर दिया और कहा कि जुडिशल ऑर्डर में फाइंडिंग्स भी देनी चाहिए। अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर मौजूद नहीं है। जज ने लिखा पेचीदगियों से बचने के लिए जेल ट्रायल की मंजूरी दी जाए। जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का मादी से इतलाक नहीं होगा। वकील सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि जज भी लेटर में मादी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। ये लेटर चीफ कमिश्नर ने वजारत दाखिला को भिजवाया। लेटर वजारत दाखिला से वजारत कानून के पास गया। वजारत कानून ने समरी तैयार करके काबीना को भिजवाई और वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। 10 नवंबर को तैयार समरी में मादी के जेल ट्रायल का जिक्र नहीं है। वकील सलमान अकरम के दलाइल के बाद अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज किया और यह फैसला 5 या 5:30 बजे सुनाया जाएगा, जो कि मुख्तसर तरीन फैसला होगा। जी बहुत शुक्रिया उमर अवैस गुरदेजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर आपको दें कि 1971 में बहारियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तान 1971 की पाक भारत जंग तारीख में एक सहबाब की हैसियत रखती है। खित्ते में हमेशा से दहशत गर्दी को फैलाने और दहशत गर्द तंजीम की पुष्ट पनाही में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं रहा। 1971 में भारत में मुक्ति बाहिनी जैसी दहशत गर्द तंजीम को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल किया।
दहशत गर्द मुक्ति बाहिनी के निहत्ते मासूम लोगों खसूसन बहारी कम्युनिटी के मुहिब वतन पाकिस्तानियों पर वो मजालिम ढाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बहारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शेख मुकीम भी इन मुतासरा पाकिस्तानियों में से एक थे जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और अजमत के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया। मेंबर बहारी कम्युनिटी शेख मकीम अपनी आपबीती सुनाते हुए कहते हैं 25 मार्च 1971 को बंगालियों ने बगावत की और मक्ती बाहिनी और इंडियन आर्मी के साथ मिल गए। मक्ती बाहिनी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान खसूसन बहारियों पर हमला आवर हुए। मक्ती बाहिनी इंडियन आर्मी और बंगाली बागियों ने बहारियों की अमलाक और आबादियों पर हमला भी किया। शेख मकीम ने बताया कि कुंजन नदी, बोगरा, ममंत सिंह, ढाका, राजशाही और पपना के लोग आज भी हमारे अज़म और हौसले की गवाही दे रहे हैं। इंडियन मीडिया ने बहारियों की लाशों को इंटरनेशनल मीडिया पर दिखाया कि ये बंगालियों की लाशें हैं, जबकि वो मजलूम बहारियों की लाशें थी जिनको उन्होंने खुद कत्ल किया था। उन्होंने बताया कि इन 5.5 लाख बहारियों के कत्ल का इल्जाम पाकिस्तानी फौज पर लगाया गया, जो कि पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने की एक साजिश है। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फराख दिली से अफगान बशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर सराहा गया। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। अफगान बशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स भी कायम किए गए हैं। चमन और तूरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं, पाकिस्तान की फराख दिली का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको बताएं, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा का अली उस सुबह शहर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स और पीर बधाई जनरल बस स्टैंड का दौरा। उन्होंने सफाई और दीगर उमूर का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी साकिब रफीक, सीईओ राना साजिद सफदर, एमसीआर, आरडीए और दीगर इंतजामी अदारों के अफसरान भी उनके हमरा थे। कमिश्नर रावलपिंडी ने यूसी 7, बोकरा रोड, यूसी 8, फौजी कॉलोनी, यूसी 9, बंगश कॉलोनी में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि शहर में सफाई सुथराई के हवाले से अवाम का RWMC के साथ ताउन काबिल सिताइश है। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में सफाई का जायजा लेने का मकसद शहर को जीरो वेस्ट बनाना है। दूसरी तरफ कमिश्नर रावलपिंडी की यूसी वेस्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कमेटियों के अरकान से भी मुलाकात हुई। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने आज शाम पंजाब के तमाम सूबाई डिविजनल्स और जनरल सेक्रेटरीज को तलब कर दिया। इलेक्शन के हवाले से मजबूत उम्मीदवारों की लिस्ट पर मुशावरत की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने आज शाम पंजाब के तमाम सूबाई डिविजनल्स और जनरल सेक्रेटरीज को तलब कर रखा है। इलेक्शन के हवाले से मजबूत उम्मीदवारों की लिस्ट पर मुशावरत की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज शाम पंजाब के तमाम सूबाई डिविजनल और जनरल सेक्रेटरीज को तलब कर लिया। इलेक्शन के हवाले से मजबूत उम्मीदवारों की लिस्ट पर मुशावरत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज शाम पंजाब के तमाम सूबाई डिविजनल और जनरल सेक्रेटरीज को तलब कर रखा है। इलेक्शन के हवाले से मजबूत उम्मीदवारों की लिस्ट पर मुशावरत करेंगे। आपको बताएं कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने आज शाम पंजाब के तमाम सूबाई डिविजनल्स और जनरल सेक्रेटरीज को तलब कर रखा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा, इस्लामाबाद में इस वक्त इस विजिट के बारे में इसको खुफिया रखा गया है, मगर आपके जराये के मुताबिक वो कल से इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। क्या खास सरगर्मियां हैं आसिफ अली जरदारी की, बताइएगा। जी, जैसे कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इलेक्शन के हवाले से मुतहर्रिक हो गए हैं और जराये के मुताबिक वो कल से इस्लामाबाद पहुंचे थे। और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद का इनका ये जो विजिट है इसको खुफिया रखा गया है, मगर जराये के मुताबिक वो कल से इस्लामाबाद अपने प्राइवेट जेट तैयारे से पहुंचे थे। और जराये के मुताबिक ये भी बताया गया है कि एक दिन के क़याम के बाद आसिफ जरदारी जो है वो दोबारा
जनूबी पंजाब मुल्तान का रुख करेंगे और मुमकिन तौर पर जनूबी पंजाब में एक हफ्ते का क़याम मुतवक्की है। और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा आसिफ जरदारी के जनूबी पंजाब में अहम शख्सियात मुलाकात भी मुतवक्की है, जहाँ पर जनूबी पंजाब से कुछ अहम शख्सियात की शमूलियत का भी इम्कान बताया जा रहा है। और आज शाम आसिफ जरदारी ने पंजाब के तमाम सूबाई डिवीजनल और जनरल सेक्रेटरीज को तलब कर रखा है और आज इलेक्शन के हवाले से मजबूत उम्मीदवारों की लिस्ट पर मुशावरत भी कर सकते हैं। जी शुक्रिया सोनिया मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। शुक्रिया सोनिया मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने स्ट्राइक कवर का दौरा किया है और मुश्तरका तरबीती मशक का मुशाहिदा भी किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की स्ट्राइक कोर आमद कमांडर मंगला कोर ने इनका इस्तकबाल किया है। आर्मी चीफ ने जदीद तरीन VT4 टेक्मो से लेस आर्मर्ड फॉर्मेशन की क़यादत भी की है और मशकों का मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ ने मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की और उनके जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वाराना महारत को भी सराहा है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्ट्राइक कोर का दौरा किया, मुश्तरका तरबीती मश्क का मुशाहिदा भी किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की स्ट्राइक कोर आमद पर कमांडर मंगला कोर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने जदीद तरीन VT4 टैंकों से लेस आर्मर्ड फॉर्मेशन की क़यादत की है, मशकों का मुजाहरा भी देखा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी अली असगर, बताइएगा। जी, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर निशानी इम्तियाज का स्ट्रेटेजिक कोर का दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने स्ट्रेटेजिक कोर की मुश्तरका तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। इस मशक का मुशाहिदा जारी ऑपरेशन की तैयारियों को फेक देना है। आर्मी चीफ ने जदीद तरीन VT4 टेक्नों से लेस मिसाइल्स का भी क़यादत की मशकों का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने मशक में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात कर उनके जज्बात और ऑपरेशन की कारकर्दगी और पेशा वरानों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंज का जवाब देने के लिए जंगी तैयारियों और ज़हनी सहूलियत के अहमियत को भी उजागर किया। आर्मी चीफ ने तेजी से बदलते हुए खतरात के पेश नजर मुख्तलिफ हथियारों के दरमियान हम आहंगी के असूल की अहमियत पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने रात की तारीकी के दौरान ऑपरेशन में हासिल होने वाली महारत को भी सराहा। आर्मी चीफ की इस बात का अदा किया गया कि अमन के वक्त सिर्फ हकीकत पसंदाना अमन मिशन पर मबनी तरबियत मैदान जंग में बेहतर कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर मंगला ने उनका इस्तकबाल किया है। जी, बहुत शुक्रिया असगर भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि राजनपुर थाना सिटी और CIA स्टाफ ने मुख्तलिफ मोटरसाइकिल डिकीटों को गिरफ्तार कर रखा है। मुलजमान के कब्जा से मोटरसाइकिलें समेत असलहा और नकदी भी बरामद कर ली गई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि राजनपुर थाना सिटी और CIA स्टाफ ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए मोटरसाइकिल डिकीटों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जा से मोटरसाइकिलों समेत असलहा और नकदी भी बरामद कर ली गई हैं। आपको अपडेट करते चलें कि राजनपुर थाना सिटी और CIA स्टाफ ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए मोटरसाइकिल डकैत गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से मोटरसाइकिलों समेत असलहा और नकदी भी बरामद कर ली गई है। आपको बताएं कि राजनपुर हमारे साथ इसी पर की तफसीलात बताने के लिए राजनपुर से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज नसरुल्लाह गपूल मौजूद हैं। जी नसरुल्लाह, बताइएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, थाना सिटी पुलिस और CI जामपुर ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल डकैतों के गिरोह को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से थाना सिटी के SHO गुलाम शबीर मस्तोई ने 7 मोटरसाइकिल बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया है। तो दूसरी जानब CIA स्टाफ मोटरसाइकिल चोरी शुदा मोटरसाइकिल फरोख्त करके वापस आ रहे थे। CI स्टाफ जामपुर ने गिरफ्तार करके 9 लाख नकदी मोटरसाइकिल और असला बरामद कर लिया है। बरामद होने वाली नकदी
मुदय्यन के हवाले करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है जी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दुनिया चांद पर पहुंच गई मगर पंजाब पुलिस का रवैया और वहशियाना तशद्दुद की रवायत न बदल सकी। गुजरात डीएसपी सिटी असद इसहाक का अपने मुलाजमों समेत मदई पर वहशियाना तशद्दुद। मजीद जानते हैं गुजरात से अपने नुमाइंदे अली अंजुम मिर्जा से। जली बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं एक मुतासरा शख्स जिसको गुजरात के डीएसपी सिटी असद इसहाक ने डंडों और लातों से तशद्दुद का निशाना बनाया है। वो इस वक्त हमारे मीडिया ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या वाकया पेश आया और क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अवैस अली है। अवैस अली, ये क्या वाकया पेश आया आपके साथ? जी जनाब, मैं ना वजीराबाद काम कर रहा था, तो मुझे रात को इन्होंने कॉल की, तकरीबन 9 का टाइम था, तो कहते हैं सिविल लाइन से मुझे कॉल की, सदम नाम है लड़के का, तो कहते हैं जनाब के आपने सुबह ना डीएसपी साहब के पास पेश होना है, साइन करने हैं आपने। मैंने कहा सर कोई मसला नहीं, मैं आ जाऊंगा। मैं निकला हूँ सर, सुबह 12 बजे नाश्ता किया उधर से, तो मैं निकल पड़ा हूँ। तो मैं डीएसपी के दफ्तर चला गया हूँ, तो साथ मेरे एक आदमी था, वो पेंट का काम करता है, इधर बाबे के डेरे का रहने वाला है, वो भी साथ था मेरे। तो हम चले गए उधर, तो गए हैं उधर, तो बैठे हुए थे मेरी वालदा, वालिद, भाई और भी लोग बैठे हुए थे। तो मैंने ये पहले तो हमारा मसला खत्म हो गया हुआ था, सिविल लाइन अब्दुल हुसैन साहब ASI उन्होंने खत्म कर दिया हुआ था। तो जनाब मैं गया हूँ, तो इन्होंने बोला ये जो डीएसपी असद साहब है, इन्होंने मुझे बोला तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ भी दी है दरखास्त। मैंने कहा जी जनाब ये तो हमारा मसला खत्म हो गया। इन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, कहते नीचे बैठ नीचे बैठ। इन्होंने नीचे बिठाया मुझे कुर्सी से, और इन्होंने 2-3 सिपाही बाहर से बुलाए हैं, उनके हाथ में डंडे सोटे और भी चीजें थी कुछ। तो इन लोगों ने मुझे लटाया है, तो इन्होंने पहले मेरे टांगे मारी हैं असद साहब ने, ये मेरा खून भी निकला होगा देख सकते हैं। इन्होंने फिर मेरा खून धुलवाया उधर से, डर के ना धुलवा दिया खून। जहाँ मेरे पहले थे ये जिसका मैंने पर्चा करवाया हुआ था, ये खून दोबारा निकला जब असद साहब ने टुड्डे मारे मेरे। तो इन्होंने मुझे लटा के पहले तो मेरी टांगे मुंह पे मारी हैं, असद साहब ने भी मारी हैं, बाकी इनके मुलाजमों ने भी मारी हैं, लटा के 4। आपको डीएसपी सिटी साहब ने भी टांगे मारी हैं? जी जनाब, ये उन्होंने भी मारी हैं साथ मिलकर। तो अब आप किससे कोई अपील करना चाहते हैं? जनाब ये तो अपील पहले नंबर पे तो ये गुजरात के DPO साहब हैं और DCO साहब, उनके फिर IG कमिश्नर साहब को ये हमारी मदद करें। ये हमारे मुहाफिज हैं, ये हमें मार रहे हैं, डाकू से हमें नहीं डर लगेगा, फिर इनसे लगेगा जनाब। डीएसपी साहब ने जिस तरह इन पे तशद्दुद किया है, उससे जाहिर होता है कि वही पुलिस का पहला फाकाना अंदाज अभी तक बदला नहीं है। खबर आपको दें कि मिस्टर एंड मिसेज नदीम जट के बेटे उमर नदीम जट के दावत वलीमा में फैमिली, अजीज व अकारिब, दोस्त अहबाब, सियासी और कारोबारी शख्सियात के अलावा ब्यूरोक्रेसी और नामवर सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने मिस्टर एंड मिसेज नदीम जट और उमर नदीम जट को मुबारकबाद पेश की और पुरसकून कामयाब अज़दवाजी जिंदगी के लिए दुआएं भी की हैं। दावत वलीमा निजी शादी हाल में मुनक़िद हुई, जिसमें मलिक ज़हीर अब्बास खोखर, साबिक चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल, नासिर बेग DSP पंजाब पुलिस, फरकान महमूद SHO जोहर टाउन, मौज़म भट्ट, वकास भट्ट, फैजान बिल्ला, नसार गुजर, मियाँ आबद, मियाँ जाहिद, नदीम डार, शाहिद भंडर, फैसल जट ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तमाम शुरका ने दूल्हा दुल्हन और उनके वालिदैन को मुबारकबाद भी पेश की और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत माहौलियात के बारे में NOCs के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन अब्दुल सलाम आरिफ, एडिशनल कमिश्नर हामिद मलही, ACR इजहारुल हक बाजवा, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात वसीम एहसन ने शिरकत की है। डिविजनल कमेटी के सामने माहौलियात के NOCs के लिए 46 केसेस पेश किए गए। कमिश्नर लाहौर की डिविजनल कमेटी ने 20 केसेस मंजूर कर लिए। कमिश्नर लाहौर का कहना है तमाम डिफर्ड केसेस को 2 दिन के बाद मुकम्मल फाइल और रियल टाइम साइड रिपोर्ट्स के साथ ही दोबारा पेश किया जाएगा। उन्होंने पोल्ट्री फार्म्स कैटेगरी के NOCs डेफर कर दिए हैं, जबकि एक NOC मंजूर भी किया गया है। कमेटी ने तमाम पेट्रोल पंप्स और रोडा रोड के NOCs की मंजूरी भी दे दी है। कमिश्नर लाहौर ने कमर्शियल इमारत
वेयर हाउसेस के एनओसीज भी डेफर कर दिए हैं। सिर्फ एक वेयर हाउस को एनओसी जारी किया गया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि मुतल्लिका माहौलियाती अफसरान एनओसीज का केस मुकम्मल करवा के कमेटी के सामने पेश करें। साइड रिपोर्ट्स, रियल टाइम डेटा और विजिटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट फाइल के साथ मुंसलिक की जाएगी। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर लाहौर पुलिस गार्ड की शहीद कांस्टेबल असगर अली की बरसी पर शहीद की कब्र पर हाजिरी। लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र को सलामी पेश की। शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की गई। शहीद कांस्टेबल असगर अली ने शालीमार लिंक रोड पर कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाई में जामे शहादत नोश किया था। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना ने शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खैराज तहसीन पेश किया। पुलिस के शोहदा हमारा फख्र हैं। शोहदाए पुलिस हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।